Good morning students, welcome to my new video. In this video we are going to learn about the remaining part of the 6th lesson of history, early kingdoms in India. So you should take your SST textbook and open your page number 45. This video is the part 2 of this lesson. So what we have seen in the first video, we have seen some words and their meanings in the beginning of this lesson, and you should write the words and meanings in your notebook also. It was the homework of first video. Okay, I hope all of you have done your homework. After it, we have seen rulers in the past. How was the rulers in this period? Okay. After this, we have seen sources. What is meant by sources? Some objects, some buildings, some records gives us the information about the past. These objects, these monuments, buildings, and these records called the sources. Okay, जहाँ से हमें हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन मिलती है, जो बिल्डिंग से, जो ऑब्जेक्ट से, जो रिकॉर्ड से, उसे हम बोलेंगे सोर्सेस. ओके. After these sources, we have seen use of iron, and during this period increased the use of iron. Okay, जो iron का use था ये यहाँ पे increase होता गया. Okay. Then after it we have seen about Janapadas. There were Janas or tribes. Okay, group of people. These are called the tribes, Janas. Okay, gradually these Janas grew big and powerful and came to be known as Janapadas. और ये जो ग्रुप वहाँ पे रहते थे, लोगों के लोग ग्रुपली वहाँ पे रहते थे, ये ग्रुप धीरे धीरे डेवलप होते गए. ओके, एंड बड़े बनते गए और ये पावरफुल भी बनते गए और उसे ही कहा गया जनपदा. गॉट इट. आफ्टर दिस जनपदास वी हैव सॉल्व्ड द MCQs on page number 44. After these MCQs we have seen about the Mahajanapadas. What is meant by Mahajanapadas? There were some Janapadas become more important and powerful, and वहाँ पे जो जनपदास थे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल बनते गए, एंड उसे ही हम बोलेंगे महाजनपदास. जो जनपदास बाकी जनपदास से इम्पोर्टेंट थे एंड पावरफुल थे एंड बड़े थे, उसे हम बोलेंगे महाजनपदास. ओके. आफ्टर दिस जनपदास वी हैव सीन about the political system. There were two systems, republic and monarchy. Okay, and most Mahajanapadas had a monarchical system. ज़्यादा से ज़्यादा महाजनपदास में monarchical system ही था. After it we have seen taxes. There were some functions like fortification, maintaining large armies, and all these functions required the money. Okay, ये जो भी functions वहाँ पे थे, functions means work, काम, ये जो भी work functions वहाँ पे थे इसके लिए पैसों की ज़रूरत थी, and this could be executed and maintained only with a regular flow of money. and ये कैसे पूरी हो सकती थी, वहाँ पे रेगुलर पैसा आना चाहिए था, एंड हेंस द राजा स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस. और इसीलिए जो भी वहाँ पे राजाज थे, रूलर्स थे, उन्होंने रेगुलरली टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया. ओके. हाउ वॉज द टैक्स? द भाग और अ शेयर वॉज अ टैक्स ऑन क्रॉप्स, एंड जो क्रॉप्स रहते थे उस पर टैक्स लगाए गए, उसे क्या कहा गया? भाग और शेयर. ओके. एंड ये कैसे फिक्स किया गया? इट वाज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन फ्रॉम बाय द फार्मर्स.
एंड देन एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस, और जो हर्डर्स थे उनसे कैसे टैक्स कलेक्ट किया जाता था? Animals and animal produce were collected as a form of the tax from herders. ओके, जो भी एनिमल्स प्रोड्यूस था ये कलेक्ट किया जाता था हर्डर से. देन क्राफ्ट्समैन कैसे टैक्स पे करते थे रूलर्स को? क्राफ्ट्समैन ऑल्सो पेड द टैक्स बाय वर्किंग फॉर अ डे इन एवरी मंथ, और हर एक मंथ में एक दिन रूलर्स के यहाँ पे वर्क करना पड़ता था क्राफ्ट्समैन को उसे, और ऐसे ही टैक्स पे करते थे क्राफ्ट्समैन. ओके, एंड द राजा कलेक्टेड फॉरेस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम हंटर्स एंड गैदरर्स, और जो हंटर्स और जो गैदरर्स थे उनसे कैसे टैक्स कलेक्ट किया जाता था? फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करके. ओके, goods that were brought and sold through trade were also taxable, और जो भी ट्रेडर्स थे उनसे भी टैक्स कलेक्ट किया जाता था. ओके, नाउ आफ्टर इट वी हैव सीन अबाउट द इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर. In this topic we have seen about the agriculture during the period of early kingdoms. Okay, with the increased use of iron tools, और जो आयरन टूल्स का यूज़ था ये अब यहाँ पे इंक्रीज़ हो चुका था, बढ़ चुका था. देर वॉज अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर, और इसकी वजह से जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ था ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ था एग्रीकल्चर में. ओके, बिकॉज ऑफ दीज आयरन टूल्स. ओके, द आयरन प्लगशर डिस्प्लेस्ड अ वुडन प्लगशर, और जो भी वुडन प्लगशर वहाँ पे यूज़ होते थे इन अर्लियर पीरियड, नाउ दे यूज द आयरन प्लगशर. ओके, अब ये यहाँ पे आयरन प्लगशर्स यूज़ होने लगे थे. वुडन प्लगशर की प्लेस आयरन प्लगशर ने ले ली थी. उसकी वजह से जो भी प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका था. ओके, आफ्टर इट वी हैव सॉल्व्ड द MCQs ऑल्सो ऑन पेज नंबर 45. ओके, now in this video we will see about the society during the early kingdoms in our India. Okay, during the period of early kingdoms in India, the society was divided into 4 groups called varnas. और जो सोसाइटी थी अपने इंडिया में ये डिवाइड हुई थी, एंड जो डिवाइडेड सोसाइटी थी उसे क्या कहा जाता था? वर्णाज. ओके, these were ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वैश्यस एंड शूद्रस. एंड ये जो ग्रुप यहाँ पे डिवाइड हुए थे वो ग्रुप्स कौन से थे? ब्राह्मण्स थे, क्षत्रियस थे, कुछ लोग वैश्यस थे एंड कुछ शूद्रस थे. ओके, these are the main groups of people. Okay, brahmans, kshatriya, vaishyas and shudras. Each varna was assigned a different set of work or functions, and हर एक ग्रुप को, हर एक वर्नर्स को फिक्स वर्क दिया हुआ रहता था. ओके, वर्क और फंक्शंस मीन्स ऑल्सो वर्क, काम. ओके, Brahmans belonged to the first varna and their duty was to study and teach the Vedas, to perform sacrifices and to receive gifts. And सबसे ऊपर कौन सा ग्रुप था? फर्स्ट नंबर का ब्राह्मण्स. ओके, एंड उनकी ड्यूटी कौन सी थी? देयर ड्यूटी वॉज टू स्टडी. उनकी ड्यूटी कौन सी थी? पढ़ना सॉरी, एंड टीच द वेदास. एंड जो वेदास वहाँ पे थे वो पढ़ाना. एंड जो भी सेक्रीफाइसेस वहाँ पे होते थे, होम हवन एंड कुछ सेक्रीफाइसेस थे, ये परफॉर्म करना. एंड टू रिसीव गिफ्ट्स, और जो भी लोग गिफ्ट्स देते थे वो रिसीव करना. ओके, इट वॉज द फंक्शन ऑफ ब्राह्मण्स. ओके, नाउ there are the pictures of varna system. Okay, there are pictures of each group. First was Brahman. Brahmans were India's
priest and were seen as the highest varna. And ब्राह्मण क्या थे? priest थे. priest means पुजारी, भटजी. okay. then आफ्टर इट क्षत्रिय. सेकेंड नंबर कौन थे? क्षत्रिय. क्षत्रिय वर रूलर्स एंड वॉरियर्स. और ये कौन थे? रूलर्स थे, किंग्स, एंड वॉरियर्स थे. वॉरियर्स मीन्स ये वॉर करते थे, बैटल्स करते थे, लड़ते थे, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है? वॉरियर्स. देन वैश्यस. आफ्टर दिस क्षत्रिय देयर वर वैश्य. ओके. वैश्यस वर फार्मर्स, क्राफ्ट्स पीपल एंड ट्रेडर्स. वैश्यस कौन थे? फार्मर्स थे, क्राफ्ट पीपल. क्राफ्ट पीपल मीन्स कुछ चीज़ें बना के बेचते थे, लाइक अ बास्केट, लाइक अ पॉट्स. ओके. दिस पीपल वर वैश्यस. एंड ट्रेडर्स ऑल्सो. ट्रेडर्स मीन्स व्यापारी, बिजनेस मैन. ओके. एंड लास्ट ग्रुप वॉज द शूद्र. and which were the functions of these shudra? शूद्र वर वर्कर्स एंड सर्वेंट. ये वर्कर्स थे और सर्वेंट थे. ओके. सर्वेंट मीन्स नौकर. टर्न योर पेज, ओपन योर पेज नंबर 46 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. ओके. क्षत्रियस बिलोंग टू द सेकेंड वर्ण. क्षत्रिय सेकेंड वर्ण थे. ओके. देन दे वर द रूलर्स. और ये रूलर्स थे क्षत्रिय. किंग्स थे. रूलर्स मीन्स किंग्स, राजे, महाराजे. दे फॉट बैटल्स एंड प्रोटेक्टेड पीपल. और ये बैटल्स करते थे, वॉर करते थे और लोगों को प्रोटेक्ट करते थे. जो भी उनके सोसाइटी के लोग थे इन्हें प्रोटेक्शन देते थे. वैश्यस और विश बिलोंग टू द थर्ड वर्ण. और जो वैश्यस थे, विश कहा जाता था उन्हें, ये थर्ड वर्ण थे. दे इंक्लूडेड ट्रेडर्स, फार्मर्स एंड हर्डर्स. और ये जो थर्ड ग्रुप था इसमें ट्रेडर्स थे, मीन्स व्यापारी, बिजनेसमैन, फार्मर्स थे एंड हर्डर्स थे. ओके. हर्डर्स मीन्स जो एनिमल्स अपने पास रखते थे और उसका जो भी प्रोडक्शन मिलता था उस पे उनकी रोज़ी रोटी रहती थी, उसे हम बोलेंगे हर्डर्स. ओके. बोथ वैश्य एंड क्षत्रियस कुड परफॉर्म सैक्रिफाइसेस. और वैश्यस एंड क्षत्रियस जो सैक्रिफाइसेस परफॉर्म रहता था वो कर सकते थे, उसमें पार्टिसिपेट हो सकते थे. ओके. सैक्रिफाइसेस मीन्स होम, हवन एंड बलिदान भी कहेंगे. ओके. बलि देना. शूद्रस बिलोंग टू द लास्ट वर्ना. और ये जो शूद्र थे, लास्ट वर्ना, their duty was to serve the upper three groups and they were not allowed to perform any ritual. and इनकी ड्यूटी क्या थी? जो अपर ग्रुप्स थे इनकी नौकरी करना. एंड इन्हें जो रिचुअल्स रहते थे, रिचुअल्स मीन्स होम, हवन. ओके. ये जो पूजा अर्चा रहती थी इसमें पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं था. ओके. जो अपर क्लास के लोग करते थे, यहाँ पे इन्हें एंट्री नहीं थी. विमेन वर ऑल्सो ग्रुप्ड विद द शूद्र. बोथ विमेन एंड शूद्र वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास. एंड विमेन को भी, जो भी विमेन थी सोसाइटी की, उन्हें भी वेदास पढ़ना अलाउड नहीं था. ओके. जो वेद रहते थे ये पढ़ना शूद्र को भी अलाउड नहीं था और विमेन को भी अलाउड नहीं था. द वर्ना सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन बर्थ. और वर्ना सिस्टम कैसे फॉर्म हुई थी? बेस्ड ऑन बर्थ, बर्थ के आधार पे. ओके. फॉर एग्जाम्पल, इफ वंस फादर एंड मदर वर क्षत्रिय, वन वुड ऑटोमेटिकली बिकम अ क्षत्रिय. अगर पापा और मम्मी क्षत्रिय है तो वो ऑटोमेटिकली क्षत्रिय बनता था बेटा. ओके. पीपल हु हेल्प परफॉर्म द ब्यूरियल्स एंड द क्रीमेशंस. क्रीमेशंस मीन्स दाह, जलाना. ओके. hunters and gatherers and some craft persons were classified untouchables. And
जो लोग बरियल्स मीन्स डेथ बॉडी दफनाना, उसे हम बोलेंगे बरियल्स, वहाँ पे हेल्प करते थे। एंड जो भी डेड बॉडी को जलाया जाता था उसे हम बोलेंगे क्रिमेशन। ओके, तो यहाँ पे हेल्प करते थे, कुछ हंटर्स थे, कुछ गैदरर्स थे, एंड कुछ क्राफ्ट पर्सन्स थे। क्राफ्ट पर्सन्स मीन्स कुछ गुड्स बना के, थिंग्स बना के बेचते थे, उसे हम बोलेंगे क्राफ्ट पर्सन्स। लाइक पॉटर्स, लाइक बास्केट्स बनाते थे। ओके, दिस पर्सन्स वर कॉल्ड क्राफ्ट पर्सन्स। एंड ये सभी लोग क्लासिफाइड किए गए थे एज अ अनटचेबल्स। एनी कॉन्टैक्ट विद दिस पीपल और ग्रुप्स वॉज कंसिडर्ड पोल्यूटिंग। अगर कोई भी लोग उनसे कांटेक्ट करते हैं तो उन्हें पोल्यूटिंग माना जाता था। ओके, अशुद्ध माना जाता था। एज अ टाइम पास्ट दिस सिस्टम बिकेम हेरिडिटरी एंड रिगिड। एंड जैसे जैसे टाइम होता गया, ये जो सिस्टम था ये हेरिडिटरी होता गया। हेरिडिटरी मीन्स अगर पापा क्षत्रिय है तो बेटा भी क्षत्रिय बनता था। अगर पापा ब्राह्मण है, मम्मी और पापा, तो उन्हें उनके यहाँ पे जो बेबी बॉर्न होता था वो भी ब्राह्मण कहलाता था, उसे हम बोलेंगे हेरिडिटरी। ओके, एंड रिगिड मीन्स बहुत ही स्ट्रिक्ट होती गई ये जो सिस्टम थी ये। ओके, दिस बर्थ बेस्ड वर्ना सिस्टम वॉज नॉट लाइक्ड बाय द लोअर वर्नास। एंड ये जो बर्थ बेस्ड सिस्टम थी ये लोअर वर्नास को पसंद नहीं थी। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हियर ट्रेड। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी currency played a very important role in the development of the trade. एंड आपको पता है कि अगर ट्रेड करना है, बिजनेस करना है, तो वहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट इन ट्रेड? मनी, करेंसी। ओके, दिस करेंसी, दिस मनी वर इंट्रोड्यूस्ड इन द पीरियड ऑफ अर्लीस्ट किंगडम। एंड this money, this currency played a role, very important role in the development of trade. जो ट्रेड डेवलप्ड हुए हैं वहाँ पे ये जो मनी, ये जो करेंसी है, इसने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है करेंसी एंड मनी का ट्रेड के डेवलपमेंट में। ओके, ट्रेड मीन्स बिजनेस, व्यापार। Earlier trade had been carried through barter, and before it means earlier period there were no currency, there were no coins. That's why there were barter system. You know what is mean by barter? Barter means in earlier period people exchanged their goods, exchanged their things with each other. That system was called the barter system. Okay, मीन्स लोग अपने पास जो भी गुड्स, जो भी थिंग्स रहती थी, ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे। दैट सिस्टम वाज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम। ओके, द इंट्रोडक्शन ऑफ पंचमार्क्ड कॉइन्स एंड in this period, in the period of earliest kingdom, there were punchmarked coins introduced, and these punchmarked coins मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर। और ये जो पंचमार्क कॉइन्स वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए थे ये सिल्वर एंड कॉपर के बने हुए थे। लेड टू एन इंक्रीज इन ट्रेड। इनलैंड ट्रेड वॉज गुड एंड वेल डेवलप्ड। और जो भी इनलैंड ट्रेड थे मीन्स जो लैंड पे होने वाले ट्रेड्स थे, सम ट्रेड्स ऑन द सी एंड सम ट्रेड्स ऑन लैंड, दैट इज कॉल्ड द इनलैंड ट्रेड। ओके, जो कंट्री के अंदर ही ट्रेड होते हैं उसे हम बोलेंगे इनलैंड ट्रेड। ओके, दिस ट्रेड वॉज गुड एंड वेल डेवलप्ड। बहुत ही डेवलप्ड थे ये ट्रेड।
Goods were transported and sent far and wide during this period. A network of roads and bridges was constructed and जो भी गुड्स थे ये ट्रांसपोर्ट किए जाते थे और दूर दूर तक भेजे जाते थे। एंड ये जो पीरियड था यहाँ पे रोड्स का जो भी नेटवर्क था ये बना हुआ था एंड जो भी ब्रिजेस थे ये भी कंस्ट्रक्ट किए हुए थे। ओके, दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। सी रूट्स वर ऑल्सो यूज बाय द ट्रेडर्स एंड जो सी रूट्स थे ये भी ट्रेडर्स यूज़ करते थे। परफ्यूम्स, आइवरी, सिल्क, मुस्लिम क्लॉथ्स वर द मेन आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड। Ivory means in earlier period there were hunting. Some people were hunter. Okay, and some people made the articles of body parts of animals, like a teeth, like a skin of animals. Okay, and what is mean by ivory? Elephant के teeth से कुछ beautiful things वहाँ पे बनाई जाती थी, that is called the ivory. Okay, अभी तो जो प्रेजेंट डे है यहाँ पे ये सब कुछ बैन हो चुका है। ओके, हंटिंग बैन हो चुकी है एंड कुछ भी हम एनिमल्स के बॉडी पार्ट से प्रिपेयर नहीं कर सकते। गॉट इट? सिल्क एंड मसलिन क्लॉथ। मसलिन क्लॉथ मीन्स दैट इज़ वन वेराइटी ऑफ क्लॉथ। ओके, and these all articles were main articles of trade। जो भी वहाँ पे बिजनेस होते थे, ट्रेड होते थे, इसमें ये सभी आर्टिकल्स मेन आर्टिकल्स थे। ओके, देयर इज द पिक्चर ऑफ एंशियंट ट्रेड रूट इंडिया मिडल ईस्ट। सी, दिस इज द पिक्चर ऑफ एंशियंट ट्रेड रूट। देन there is one case study, we have to read it. Magad. After its formation, Magadha became the most important Mahajanapada within 200 years। and ये जो मगध रीजन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महाजनपदा बन चुका था विद इन 200 ईयर्स। ओके, 200 साल में। रिवर्स सच एज द सोन, द गंगा फ्लोड थ्रू मगध एंड देर वर गंगा एंड सोन। सोन इज द tributary of Ganga। You know, tributary, some rivers, some small rivers flow from big rivers। Okay, that river, that small rivers are called the tributary and this Son river is a tributary of Ganga। और ये जो दो rivers यहाँ पे है ये मगध से flow होती थी। द नेटवर्क ऑफ दिस रिवर्स वॉज इम्पॉर्टेंट एंड जो भी नेटवर्क वहाँ पे था ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था रिवर्स का फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये नेटवर्क इम्पॉर्टेंट था। कौन सा ट्रांसपोर्ट करते होंगे वहाँ पे? ट्रेड। ओके, वाटर सप्लाईज, जो भी वाटर वहाँ पे सप्लाई होता था उसके लिए ये नेटवर्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। मेकिंग द लैंड फर्टाइल फॉर क्रॉप्स एंड क्रॉप्स फर्टाइल है, सॉरी क्रॉप्स जो वहाँ पे ग्रो होते थे उसके लिए जो लैंड चाहिए थी ये फर्टाइल होने के लिए ये जो नेटवर्क था रिवर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ओके, उसकी वजह से जो सॉइल वहाँ पे थी ये फर्टाइल होती थी। Magadha was surrounded by forest and these dense forests were useful for Magadha in several ways। and ये जो मगध region था, that is the picture of this Magad given in this map। okay, तो ये जो रीजन था ये पूरे फॉरेस्ट से सराउंडेड था एंड देयर वर डेंस फॉरेस्ट। ओके, and these dense forests were useful for Magad in several ways। and ये जो dense forest वहाँ पे थे ये बहुत ही यूजफुल थे मगध के लिए। ओके, मगध was one region, got it, Mahajanapada। then
remains of राजगीर कैपिटल ऑफ मगधा एंड मगध की ये कैपिटल है राजगीर. गिवन हियर द पिक्चर ऑफ दिस राजगीर. ओके, 1 minute. This picture is here of Rajgir, remains of Rajgir. Elephants were captured from forest and trained for the army. And what was the use of forest for Magadh? जो भी एलिफेंट्स वहाँ पे रहते थे फॉरेस्ट में, ये कैप्चर किए जाते थे और उन्हें ट्रेन किया जाता था फॉर आर्मी के लिए. एंड कार्ट्स, चैरियट्स एंड हाउसेस वर बिल्ड फ्रॉम वुड. और जो भी वुड यहाँ पे चाहिए था मगध महाजनपदा में, वो वुड फॉरेस्ट से ही वो यूज़ करते थे. कार्ट्स, जो भी कार्ट्स वहाँ पे बनाई जाती थी. एंड जो चैरियट्स मीन्स रथ, ये जो भी वहाँ पे बनाए जाते थे ये वुड से बनाए जाते थे. और ये वुड्स कहाँ से लाते थे? फ्रॉम फॉरेस्ट. ओके, एंड इन दिस वे दिस फॉरेस्ट वर यूजफुल फॉर मगध महाजनपदा. ओके, Magad also had iron mines which could be tapped to make strong tools and weapons. ये जो मगध महाजनपदा था, यहाँ पे आयरन माइंस होने की वजह से पीपल ऑफ मगध वर यूज्ड द आयरन फॉर मेकिंग द टूल्स एंड मेकिंग द weapons also. Okay, that's why their weapons and tools were very strong. Two powerful rulers of Magad were Bimbisara and the Ajatashatru, and there were two powerful rulers of Magad. Okay, and who were they? They were Bimbisara and the Ajatashatru, and they both were expansionist and used all possible means to conquer other Janapadas. और ये दोनों जो रूलर्स थे, किंग्स थे, ये अपना जो भी किंगडम था, जो भी महाजनपदा था, वो एक्सपांड करने के लिए जो भी पॉसिबल मीन्स वहाँ पे मिलते थे दूसरे जनपदास को हासिल करने के, वो यूज़ करते थे. ओके, मीन्स माध्यम, जो भी तरीके से उन्हें वो हासिल कर सकते थे वो तरीका वो यूज़ करते थे. ओके, कॉन्क्यूर मीन्स काबिज करना. ओके, कंट्रोल करना, जीतना. और नेक्स्ट पेज नंबर 47. Mahapadma Nanda was another important ruler of Magad, and Padma Nanda was also powerful ruler of Magadha. Okay, his control was extended up to the northwest part of India. For several years, Rajgriha, present day Rajgir, was the capital of Magad, but later the capital was shifted to Patliputra, present day Patna. And बहुत सारे सालों तक राजगृह कैपिटल थी मगध की, but later means after some years the capital was shifted to पाटलिपुत्र, और मगध की पाटलिपुत्र कैपिटल बन चुकी थी आफ्टर सम ईयर्स. ओके, नाउ प्रेजेंट डे दिस पाटलिपुत्र इज़ अ पटना. ओके, पटना को पाटलिपुत्र कहा जाता था इन अर्लियर पीरियड. नाउ देन अगेन केस स्टडी अबाउट वज्जी. Vajji with its capital Vaishali in present day Bihar was a republican Mahajanapada. एंड ये जो वज्जी महाजनपदा था, यहाँ पे कौन सी सिस्टम यूज़ होती थी? रिपब्लिकन महाजनपदा. ओके, एंड इलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल रूल्ड इट एंड देयर वर इलेक्शन इन दिस वज्जी. ओके, यहाँ पे इलेक्टेड जो लोग रहते थे वो रूल करते थे. दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज नेम्ड गना एंड संघ. और ये जो गवर्नमेंट रहती थी लोगों की, उसे गना और संघ कहा जाता था. इन अ गना और संघ पावर वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. एंड ये जो गना, ये संघ जो रहते थे, यहाँ पे जो भी पावर रहते थे ये लोग मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे, जैसे अभी प्रेजेंट अपनी गवर्नमेंट है वैसे. ओके,
दिस वॉज अ यूनिक सिस्टम इन विच थाउजेंड्स ऑफ मेन रूल टुगेदर, ईच वन वॉज नोन एज अ राजा। एंड ये बहुत ही यूनिक सिस्टम था और थाउजेंड्स लोग यहाँ पे रूल करते थे एक साथ, एंड हर एक को राजा कहा जाता था। These rajas met in assemblies, performed rituals together and decided important matters through debates and discussion। और ये जो राजाज थे, ये जो मेंबर्स थे, ये असेंबली में मिलते थे एंड कुछ परफॉर्म भी वहाँ पे होते थे, रिचुअल्स। ओके, रिचुअल्स मीन्स होम हवन। ओके, तो ऐसे परफॉर्म भी वहाँ पे एक साथ किए जाते थे और कुछ इम्पोर्टेंट मैटर्स पे डिस्कशन डिबेट्स होते थे। ओके, विमेन दासाज एंड कामकरा वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन दिस असेंबलीज। और जो विमेन, जो दासाज थे एंड कामकराज, ये सभी लोगों को ये जो असेंबली रहती थी यहाँ पे एंट्री नहीं थी, उन्हें वहाँ पे रोका जाता था। प्रोहिबिट मीन्स रोकना। ओके, महावीरा एंड बुद्ध बिलोंग टू गना और संघ। और महावीरा एंड ये जो बुद्ध है ये गना एंड संघ से बिलोंग है। बुद्धिस्ट लिटरेचर प्रोवाइड्स गुड इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ संघ, लाइफ इन द संघ। एंड जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है यहाँ से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है संघ के लाइफ के बारे में। Many rajas of powerful kingdoms attempted to conquer the Sangha, but Sanghas lasted for a very long period of time. It was about 1500 years ago that the last Gana or Sangha was conquered by the Gupta rulers, and 1500 years ago ये जो गना, ये जो संघ था, गुप्त रूलर्स ने इन्हें कॉन्वर्ट किया था। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज हियर दीघा निकाया। दीघा निकाया इज़ अ फेमस बुद्धिस्ट बुक। इट इज़ वन फेमस बुद्धिस्ट बुक, दीघा निकाया। व्हाट इज दिस दीघा निकाया? इट इज़ अ फेमस बुद्धिस्ट बुक। इट कंटेन्स सम ऑफ द स्पीचेस ऑफ बुद्ध। और यहाँ पे कुछ बुद्ध के स्पीचेस है दीघा निकाया में। ओके, इट वॉज रिटन 2300 ईयर्स एगो। एंड कब लिखा हुआ है ये? 2300 ईयर्स पहले। दिस इज़ एन अकाउंट ऑफ वज्जीज फ्रॉम दीघा निकायाज। एंड यहाँ पे वज्जी के बारे में कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इट इज़ अ account of Vajjis. Okay, Ajatashatru and the Vajjis. Who was this Ajatashatru? He was the ruler of Vajji. Okay, sorry, not Vajji. He was a ruler of Magad. Got it? अजातशत्रु wanted to attack the Vajjis. अब ये जो अजातशत्रु थे मगध के रूलर्स, इन्हें वज्जी पे अटैक करना था। ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम्ड वसकरा टू द बुद्ध टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर। और इन्होंने अपने मिनिस्टर वसकरा को भेजा था बुद्ध की एडवाइस लेने कि क्या करें, हमें अटैक करना है वज्जी पे। ओके, when the Buddha heard from Vasakara that the Vajjis met frequently in full assemblies, he replied that the Vajjis would continue to prosper as long as they followed established rules. They held full and frequent public assemblies and acted together। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं वज्जी के, कुछ फीचर्स दिए हुए हैं उनके गवर्नमेंट के। ओके, they respected, supported and listened to elders। और what is the features of these Vajji? They followed established rules। जो भी रूल्स वहाँ पे एस्टैब्लिश होते हैं वो फॉलो करते थे। They held full and frequent public assemblies and acted together। और बहुत बड़ी वहाँ पे असेंबली रहती है एंड वो एक साथ वहाँ पे
एक्ट करते हैं. ओके, एंड दे रिस्पेक्टेड, सपोर्टेड एंड लिसन टू एल्डर्स. और ये बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं और सपोर्ट करते हैं और बड़ों का सुनते हैं. ओके, वज्जी वीमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड. और जो वज्जी है यहाँ पे विमेंस को फोर्सफुली कैप्चर नहीं किया जाता. चैत्याज लोकल श्राइन्स वर मेंटेन्ड इन बोथ टाउन्स एंड विलेजेस, and sons of different beliefs were respected and allowed to enter and live the country freely. Okay, these are the features of वज्जी. जो बुद्ध ने अजात शत्रु के जो मिनिस्टर्स थे वसक्करा इन्हें बताए थे. ओके, नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर. द डेवलपमेंट ऑफ किंगडम स्टार्टेड इन इंडिया अराउंड 2500 years ago. Most of them developed in the Ganga Valley. And जो kingdoms डेवलप हुए थे ये 2500 years ago वहाँ पे स्टार्ट हो चुका था किंगडम्स डेवलप होना. ओके, एंड ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे डेवलप हुए थे? इन द गंगा वैली. द लेटर वैदिक लिटरेचर वॉज कंपोज्ड इन नॉर्थ इंडिया. दिस इंक्लूड्स Samveda, Yajurveda and Atharvaveda as well as other books. Society was divided into 4 groups called Varnas. और जो सोसाइटी थी ये 4 ग्रुप्स में डिवाइड की थी, उसे वर्नास कहा जाता था. Brahmins belonged to the first Varna and their duty was to study and teach the Vedas, to perform sacrifices and to receive gifts. एंड ब्राह्मण्स फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग थे वर्ना के. एंड व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ ब्राह्मण्स? स्टडी एंड टीच द वेदास एंड परफॉर्म्स द सैक्रिफाइस एंड रिसीव द गिफ्ट्स. क्षत्रियाज बिलोंग टू द सेकेंड वर्ना एंड क्षत्रिया सेकेंड ग्रुप से बिलोंग थे. दे वर द रूलर्स, और ये रूलर्स थे, किंग्स रहते थे. दे फॉट बैटल्स एंड प्रोटेक्टेड पीपल, और लोगों का प्रोटेक्शन करते थे. वैश्य और विश बिलोंग टू द थर्ड वर्ना. दे इंक्लूडेड ट्रेडर्स, फार्मर्स एंड हर्डर्स. और ये जो वैश्यस विश थे ये थर्ड वर्ना से बिलोंग्स थे. ओके, एंड इसमें कौन कौन इंक्लूड थे? ट्रेडर्स, फार्मर्स एंड हर्डर्स. शूद्रस बिलोंग्ड टू द लास्ट वर्ना. देयर ड्यूटी वॉज टू सर्व द अपर 3 ग्रुप्स. अकॉर्डिंग टू द प्रीस्ट द वर्ना सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन बर्थ. और ये जो वर्ना सिस्टम यहाँ पे फॉर्म हुई थी, जो ग्रुप्स यहाँ पे डिवाइड हुए थे ये बर्थ के बेस पे हुए थे. द रूलर्स हु कंट्रोल्ड बिग एरियाज एंड परफॉर्म्ड अश्वमेधा सैक्रिफाइसेस वर रिकॉग्नाइज्ड एज राजाज ऑफ जनपदा. Historians suggest that around 2500 years ago some Janapada became more important than the other and were called Mahajanapadas. And 2500 years ago there were some Janapadas became more important and more powerful than other. Okay, and that's why they were called the Mahajanapadas. Okay, now our lesson is completed here. Students, you should read the lesson and find the difficult word from this lesson and search the meaning of this difficult word in your dictionary. Okay, and you should write the question and answers also in your notebook. Okay, I will send it after this video.